Hello students, this is my part 2 of chapter number 3, admission of partner of your BK. So in our last lecture we have seen the introduction meaning of admission of partner, as well as we have seen the calculation of new profit sharing ratio as well as sacrifice ratio. In today's lecture we will learn which accounts is to be prepared or opened in admission of a partner. So in admission of a partner, first understand that they can ask you journal entries also, or they can ask you the ledger accounts also. So first we are doing with the ledger accounts. Journal entries, we already know how to prepare the journal, right? You know the format of journal. Moreover, we know the ledger accounts also, but there are some new accounts which are to be prepared in admission of partner. So beginning with that, whenever the ledger accounts are asked, the three accounts which will be asked in the question, the first one will be profit and loss adjustment account, or it is also called as revaluation account, right? This is something new you are doing for the first time, so I will explain one by one all. So this is the first account which will be asked if ledger accounts are asked. Moreover, whether journal is asked or ledger is asked, in both the cases it is compulsory to prepare the profit and loss adjustment account, right? Then second is partners capital account. You are familiar with partners capital account already. In final accounts we have already prepared partners capital account. Then next is balance sheet of the firm, you know about this also. Next is cash and goodwill. These two accounts, these three will be asked in the question. But to complete with the balance sheet, you have to calculate the cash and goodwill. Why? Because both the things are being brought by the new partner in business. So when anything comes or goes out, this account will be affected, right? अगर कैश लेके आया तो कैश बढ़ेगा, गुडविल लेके आया गुडविल बढ़ेगा, राइट? गुडविल विड्रॉ किया है गुडविल कम होगा. तो all these effects will be shown in this, and after that it will be transferred to the balance sheet asset side. So basically these two accounts are nothing but working notes. So main three accounts are revaluation account, partners capital account, balance sheet. These three are the for which you will get the marks. But cash and goodwill you have to prepare, but it is only the working notes, but it will not provide you the marks, right? But आपको बनाना ही पड़ेगा. इसको बनाए बगैर आपको पता नहीं चलेगा what are the balances of cash and goodwill account, right? So these are the 5 accounts which has to be prepared. So today first we will see the ledger accounts, how it is to be prepared. So see, my first account will be profit and loss adjustment account, right? Always give as in the class also, I always on the first day tell you how to prepare the account. Each and every day I will not tell you about how the account is to be prepared. Moreover, you should understand what is the account, which type of account, what is to be recorded. So first we are seeing this profit and loss adjustment account. In the books of the firm, so you will give the heading in the books of the firm. Suppose the name of the business is like Messrs Kapoor and Sons, ऐसा कुछ नाम दिया है तो you can write that name, or if there is no name given you will write in the books of the firm. Firm means वो business के books में हम कर रहे हैं. So the first account is profit and loss adjustment account. It's a ledger account. So this side, left hand side will be debit, right hand side will be credit. This column will be particulars. First column is amount rupees, second column amount rupees. There will be two amount columns. Then comes particulars, amount rupees, amount rupees. This is how profit and loss adjustment account is prepared. Now what is this profit and loss adjustment account? First thing to be remembered is this is a nominal account. This is a nominal type of account. So you are
Remember the golden rule for nominal account. What is it? Debit all expenses and losses, credit all income and gains, right? So सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, this is a nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Now why do we prepare this account? अच्छा, one more thing. When I say this is a nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. Moreover, the name is profit and loss adjustment account, or you can call it as revaluation. अगर problem में बोला prepare revaluation, you will write here revaluation account. If problem में बोला profit and loss adjustment, you will write here profit and loss adjustment. It is one and the same thing, right? So when I say this is a nominal account, it means it is similar to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सिमिलर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये उसी की तरह सिमिलर. दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो चीज़ें आती हैं वो इसके डेबिट में आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो चीज़ें आती हैं वो इसमें आएगी. बट द बेसिक लॉजिक इज़ डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. नाउ third question comes, why it is to be prepared, right? So whenever there is reconstitution, that is, we know what is reconstitution. It can be admission, it can be retirement, it can be death, right? Whenever there is reconstitution, maybe admission, retirement, death, so you have to revalue all assets and liabilities. Now what do you mean by this? जितने भी assets और liabilities business के पास है उनको आपको revalue करना पड़ेगा. Whenever there is reconstitution, now basically I am talking to admission. So whenever there is admission of a new partner, you have to revalue all assets and liabilities. Now what do you mean by revalue? रीवैल्यू करना, हर एसेट और लाइबिलिटी की एक वैल्यू होती है, उसको रीवैल्यू करना मतलब उसको वापस देखना क्या उसकी वैल्यू सही है या नहीं. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. सपोज द बिजनेस, द फर्म हैज़ अ मशीनरी इज़ एन एसेट. 5 years बैक, 5 साल पहले, 5 years back, the cost of machinery, means when it was purchased, when the business was started, the machinery is rupees 5 lakh, right? But जब तक ये business 5 साल हम कर रहे हैं, हम depreciation provide कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद क्या इस मशीन की वैल्यू 5 लाख होगी? नहीं होगी, राइट? उसकी वैल्यू कम होगी. मे बी हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसके बाद भी इसकी वैल्यू कुछ कम हो सकती है, राइट? सो वी विल फाइंड आउट नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी एंड देन वी हैव टू एडजस्ट इट. सपोज अ सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, राइट? जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, द वैल्यू ऑफ माई फैक्ट्री वॉज द बिल्डिंग, जो जगह थी, जो लैंड थी, उसकी जो वैल्यू थी, मतलब मैंने जो ऑफिस बनाया, मेरा प्रीमाइस बनाया, द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 5 lakh, राइट? नाउ 5 years बैक आई एम शोइंग इट एज 5 lakhs ओनली. मैं इसको 5 लाख ही दिखा रही हूँ बैलेंस शीट में, लेकिन आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग की रेट कितनी जल्दी बढ़ती है. तो मे बी ये जो 5 lakh रुपीज़ है, दिस मे बी समवेयर अराउंड 10 lakhs. आज इसकी कीमत मार्केट में कितनी है? 10 lakh रुपीज़ है, राइट? तो 5 लाख मैं दिखा रही हूँ बैलेंस शीट में, लेकिन आज इसकी मार्केट में कीमत 10 लाख है, 5 लाख बढ़ गई है, राइट? अब एसेट अगर आपका बढ़ता है, इफ आई एम हैविंग एनी एसेट इन माई बिजनेस एंड माई एसेट इज़ ग्रोइंग, इज़ इंक्रीजिंग, देन इट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ प्रॉफिट. आपका बढ़ गया ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका. मतलब आपका एसेट 5 लाख का था बिल्डिंग, आज उसकी कीमत है 10 लाख रुपए. तो ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ गया है आपका, क्योंकि एसेट इज़ इंक्रीजिंग. व्हेनेवर देयर इज़ इंक्रीज इन एसेट, राइट,
increase in asset, then there is profit, right? Same way उल्टा होता है, when there is decrease in asset, there will be loss, right? अब ये कैसे हम ले सकते हैं, एक एग्जांपल कि सपोज़ मेरा कुछ स्टॉक है, या सपोज़ मैं डेटर्स का लेती हूँ, दैट विल बी बेटर. I am having some debtors. Who are debtors? Debtors are the customer from which I am going to get the money, right? Debtors मेरे कस्टमर जिनको मैंने सेल किया, मुझे पैसा मिलेगा. अब मेरे डेटर्स जो मैंने दिखाए हैं बुक में वो हैं 50,000 के, राइट? इन माई बैलेंस शीट इट इज़ शोइंग एज 50,000. बट आज जब मैंने पूरा वापस स्टडी किया है, रिवैल्यू किया है, आई फाउंड दैट माई डेटर्स हैज़ बीन रिड्यूस टू 48,000. रिड्यूस मतलब क्या हुआ है, बैड डेब्स हो गए. कितने के? 2,000 रुपये के. 2,000 मेरे को अभी भी पता चला है कि ये 2,000 रुपये जो देने वाला था एक डेटर, वो नहीं दे सकता. ही इज़ इंसॉल्वेंट, वॉट एवर द रीज़न, नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू पे मी दी मनी. सो माई एसेट, डेटर इज़ माई एसेट, माई एसेट इज़ डिक्रीजिंग, राइट, फ्रॉम 50 to 48,000, तो 2,000. तो ये मेरा क्या हो गया है, लॉस. दिस हैज़ बिकम माई लॉस. ओके, सो दिस इज़ लॉस. Understood? So whenever there is increase in asset, there is profit. Whenever there is decrease in asset, it is loss. Clear? Now coming to the liability. अब जब भी liability में increase होगा, increase in liability. Now suppose we talk about bank loan. तो bank loan is my liability. So I have taken a bank loan of 5 lakh rupees. ठीक है. Now this in my balance sheet liability side I have shown my bank loan as 5 lakh. But ऐसा हुआ कि मैंने अभी पिछले महीने में ही और 1 लाख रुपए का लोन लिया है, right? So my bank loan will become how much? 6 lakh. That is, what is the difference between them? 1 lakh rupees. Whenever there is increase in liability means my bank loan is increase. आप कुछ भी ले सकते हो, क्रेडिटर्स ले लो, बिल्स पेबल ले लो, कोई भी एक लाइबिलिटी है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो पहले मुझे कितना पे करना था, 5 लाख. अभी मुझे कितना पे करना है बैंक को, 6 लाख. और डिफरेंस क्या है, 1 लाख का. तो जब मेरी लाइबिलिटी 1 लाख से बढ़ रही है, मुझे और पे करना है. जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस. Right? This is the logic you have to understand. You have two choices. Either you understand the logic, either you by heart it. But always I have told you, by hearting is not the solution. Right? तो जब लॉजिक अप्लाई करना है कि जब मेरा एसेट बढ़ता है तो मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि मेरा सामान, मेरी चीज़ बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है. पर जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी मतलब जो मुझे पे करना है, तो जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है तब मेरा क्या होता है, लॉस होता है. दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर. दोनों अपोजिट हैं, राइट? सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल लीड टू लॉस. नाउ व्हाट अबाउट डिक्रीज इन लाइबिलिटी? Whenever there is a decrease in liability, like suppose creditors, क्रेडिटर्स मेरे थे 40,000, पर आज जब मैं रिवैल्यू करूँ, ये रिवैल्यूएशन कब कर रहे हैं हम, बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. क्यों करते हैं, दैट आई विल टेल यू. दैट क्रेडिटर्स 40,000, नाउ क्रेडिटर्स आर 40,000, राइट? नाउ दे हैव बिकम 38,000. मतलब जो 2,000 रुपये है, इट इज़ रिटर्न ऑफ. मतलब क्रेडिटर्स ने मुझे डिस्काउंट दे दिया होगा, या नहीं चाहिए, मैंने गुड्स रिटर्न किए होंगे तो मुझे नहीं पड़नी, जो भी है, रिटर्न ऑफ मतलब कम हो गए. सो वेन एवर देर इज़ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, पहले मुझे पे करना था 40,000 रुपये, अब मुझे पे करना है 38,000, तो 2,000 रुपये मुझे कम पे करने हैं. सो इट इज़ वॉट, प्रॉफिट. ओके, so these are the 4 main basic things. First of all, you have to understand revaluation account. Now, why do we prepare revaluation account? Because whenever there is reconstitution, we revalue all assets and liabilities. But why? What is the need? Because जैसे कि increase हुआ asset में मुझे profit हुआ, increase हुआ decrease हुआ liability में मुझे profit हुआ, right? दोनों जगह मुझे profit हुआ. ये जो profit हुआ है, इस पे किसका हक है?
who is going to get this profit, who is actually लाइबल फॉर दिस प्रॉफिट, किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि ये उनके बिजनेस के टाइम पे हुआ है जब वो दोनों बिजनेस कर रहे थे, राइट। तो ये जो प्रॉफिट है इस पर किसका हक है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। सेम वे ये उसको नहीं मिलना चाहिए, न्यू पार्टनर वो क्यों, जब वो बिजनेस ज्वाइन करेगा उसके बाद से जो भी प्रॉफिट होगा ही विल बी लाइबल ओनली फॉर दैट, राइट। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वेन एवर देर इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन एडमिशन, what we do, we revalue the assets and liabilities. Suppose if there is profit, right, so it will be distributed among the existing partner. In the same way, whenever there is decrease in asset and increase in liability, there is what, loss होता है दोनों केस में। तो ये भी जब वो उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं हम उसके एडमिशन के पहले का, तो हम उसको लॉस दे सकते हैं, नो, he is not liable for loss. The new partner is not liable for profit nor for the loss before the admission. The day when he will join the firm, उसके बाद से जो भी profit और loss होगा वो उसको मिलेगा. So the concept is clear, I think. Why we prepare this profit and loss adjustment account? To revalue all assets and liabilities. Why? Because the profit and loss before the revaluation of asset, before the admission of a partner is going to be distributed only in the existing partners, right? उसको कब से मिलेगा, वो क्यों लोन भरे, वो तो था ही नहीं ना, लोन मेरा बड़ा है 1 लाख का, वो क्यों लोन भरेगा, वो तो था नहीं जब बिजनेस में जब लोन लिया था। तो दैट्स वे जब वो जो मेरी लैंड की मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है, वो था ही नहीं, तो उसको वो प्रॉफिट क्यों मिले। So इसीलिए before admission whatever is the profit and loss on revaluation of assets and liabilities, it is distributed to the existing partner. For that purpose we prepare this account, which is a nominal account, which is similar to profit and loss account. Now what we do in this account, this is my books of firm profit and loss adjustment account. So suppose मेरा जो पहला वाला जो मैंने लिया था एग्जाम्पल कि फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है 5 लाख की थी, अब 10 लाख की होगी, मतलब 5 लाख रुपीज़ जो है वो बढ़ गई है, राइट। सो इट इज़ प्रॉफिट, एज आई टोल्ड यू दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बोला आपको ऑलरेडी, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे क्या आएगा, इनकम एंड गेन्स, राइट। तो सपोज़ हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस। सपोज़ मेरा डेटर्स कम हुआ है, सो यहाँ पे बैड डेब्ट्स ये सब नाम नहीं लिखते हैं हम लोग, डायरेक्टली लिखते हैं टू डेटर्स अकाउंट, राइट। सपोज़ मेरा डेटर्स जो है लॉस है, मतलब कम हुआ है मेरा डेटर्स, राइट। देन उसके बाद में मुझे लॉस कब होता है, जब मेरी लाइबिलिटी, सपोज़ मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स जो है वो मेरी कम हुई है, राइट, कितने से, 2000 रुपये से, राइट। सो वेन एवर देर इज़ लॉस इट विल बी रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कहाँ होते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट में। सो इफ़ इट इज़ इंक्रीज देर इज़ एप्रिसिएशन, राइट, एप्रिसिएशन ऐड करो। इफ़ देर इज़ डिक्रीज इट मे बी डेप्रिसिएशन, इट कैन बी RDD, वॉट एवर, बैड डेब्ट्स, तो वो लिखो वहाँ पर। यहाँ पे जो भी एसेट और लाइबिलिटी का नाम है हम वो लिखते हैं, राइट। नाउ दिस इज़ डन। नाउ कम टू द इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स में मेरी जो यहाँ 2 आएगा, यहाँ बाय आएगा, एवरीवन नोज दिस अबाउट लेजर अकाउंट। सो बाय, सपोज़ मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है वो बढ़ गई है, राइट, 5000 से। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5000, आउटर कॉलम में लिखने हैं अमाउंट्स, राइट। देन उसके बाद में लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई है, तो सपोज़ मेरा जो बिल्स पेबल है BP है वो कम हो गया है, कम कितने से हो गया है, 2000 रुपये से, ठीक है। तो बाय BP अकाउंट 2000, राइट। सो वेन एवर इट इज़ एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉजिक लगाना है, मैंने वही कहा, बाय हार्ट नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। अगर मेरा एसेट कम हो रहा है तो वो आएगा डेबिट में, अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो वो आएगा डेबिट में, क्योंकि दोनों केस में क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉस। सो हियर आई कैन राइट डिक्रीज इन एसेट इज माई एक्सपेंस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज माई expense, right?
अब यहाँ पे क्या आता है, इंक्रीज, इसका उल्टा। अगर आप एक चीज़ याद रखोगे ना तो पूरा याद, आई विल टेल यू हाउ। इंक्रीज इन एसेट, इट्स माई प्रॉफिट। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इट्स माई प्रॉफिट, क्योंकि मुझे कम पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट, इनकम। एक चीज़ अगर याद रहेगी तो सब याद रहेगा। कैसे? यू जस्ट रिमेंबर दिस, डिक्रीज इन एसेट्स कम इन डेबिट साइड। सो यहाँ डिक्रीज़ है, इसका उल्टा होता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब यहाँ डिक्रीज इन एसेट है तो इसके उल्टे में क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट। पर ये भी रट्टा मारने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसलिए बेटर है लॉजिक इस्तेमाल करो। जब कोई हमारा लॉस हो रहा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो उसको हम लिखते हैं डेबिट में। इनकम और गेन हो रहा है तो उसको हम लिखते हैं क्रेडिट में, राइट। सो आफ्टर डूइंग दिस I will take out the total. This is what, 7,000, right? Now whichever is greater, यहाँ का कितना है 4,000, तो greater क्या है 7,000. I have written it here, right? 7,000, 7,000. 7,000 minus 4,000 is what, 3,000. दिस इज़ दी बैलेंसिंग। मतलब सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिवैल्यू करने के बाद मुझे 3,000 रुपये अगर डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट है ये, और अगर मुझे डेबिट में आ रहा है बैलेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टू, पहले ये किसको मिलने वाला है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000। सपोज़ ए और बी है, दोनों इक्वल पार्टनर हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1,500। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन, क्योंकि ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट विल गो इनटू दी पार्टनर्स। फाइनल अकाउंट्स में सीखा है आपने, राइट। प्रॉफिट होता है, जब नेट प्रॉफिट होता है, वेयर वी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस यहाँ आया है तो इट इज़ प्रॉफिट। सपोज बैलेंस कम्स हियर, सो व्हाट इट विल बी, लॉस। तो यहाँ आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, और ब्रैकेट में आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। दिस इज़ द न्यू अकाउंट, सो अंडरस्टैंड इट, वॉच द वीडियो अगेन. If any doubt, we will clear in our doubt session, right? So this much you understand. तो फर्स्ट अकाउंट विच इज़ टू बी प्रिपेयर, जो सबसे पहला काम एडमिशन के बाद होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं. वाई वी प्रिपेयर इट, टू रिवैल्यू ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, बिकॉज ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विच आर बिफोर द एडमिशन is going to be given, is going to be distributed among only the old partners. This is to be remembered. ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा. तो कौन से रेशियो में मिलेगा, अगेन वो भी इम्पॉर्टेंट है, ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, तो किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो. प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस रेशियो में जाएंगे, ओल्ड रेशियो. और ओनली किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स, राइट. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट. नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप एवरीवन नोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपने इतना सब बनाया है अभी उसमें, डेबिट, क्रेडिट, एंड ऑलवेज आई वांट दीज अकाउंट्स टू बी रेडी व्हेन एवर यू सॉल्व दी प्रॉब्लम. सब चीज़ लिख के होना चाहिए. यहाँ पे सपोज ए बी पार्टनर के नाम, और ब्रैकेट में आएगा अब रुपीज़ का साइन, है. अगेन सेम वेज पर्टिकुलर्स ए बी सी, रुपीज़, अमाउंट रुपीज़ आप लिख सकते हो, राइट. देन उसके बाद में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा आता है, क्रेडिट. समटाइम्स इट कैन बी डेबिट, वो बैलेंस शीट में जो भी दिया, यूजुअली इट इज़ क्रेडिट बैलेंस, राइट. तो जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो पहले किसका बैलेंस होगा, सिर्फ इसका बैलेंस होगा, राइट. इन दोनों का बैलेंस होगा. अब जब नया पार्टनर आएगा वो क्या लेके आएगा, कैश. तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो सपोज ये मेरा कैश अकाउंट है, राइट. अगेन सेम डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़.
और ये मेरा है गुडविल, नहीं, ये दोनों मैंने पहले ही बोला आपको, दिस इज़ जस्ट दी वर्किंग नोट, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट. वाई यू हैव टू प्रिपेयर इट? बिकॉज यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स. अभी रुपीज़ का साइन चेंज हो गया है तो ऐसे ही लिखना है. So coming here, so whenever cash comes in the business as capital, what is the entry? Cash account debit. Cash account के debit side में to C. Suppose हम new partner का नाम ले रहे हैं C. Capital account जो भी है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो भी वो लेके आएगा. तो कैश अकाउंट के डेबिट में आया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, राइट. सो मैं ये बता रही हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा एडमिशन. और भी चीज़ें आ सकती हैं बेसिक जो हर प्रॉब्लम में होगी. एक तो आएगा आपका कैश, इधर इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है तो इसका क्या आएगा, कैश जो भी वो लेके आएगा. फिर वो गुडविल भी लेके आता है, राइट. सो अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है. फिर ये गुडविल जो होता है ये पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, कई चीज़ करते हैं. अभी कैश टू गुडविल है तो कैश में आ गया गुडविल, और गुडविल में भी आएगा बाय कैश, राइट. तो इसलिए हमको ये अकाउंट बनाने हैं क्योंकि ये सब एंट्रीज होंगी, राइट. अब ये गुडविल जो है वो यहाँ भी आएगा, वो डिपेंड करता है. देयर आर 4 केसेस विच वी विल लर्न ईजीली क्विकली वन बाय वन इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. अभी सब चीज़ बता दूंगी तो नहीं समझ में आएगा, राइट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कैश और गुडविल के बाद बाकी सब होगा, जैसे उसमें दिया होगा सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जो भी दिया होगा. बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है एडमिशन में वो आपको याद रखना है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दैट इज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये वो है जो बैलेंस शीट में दिया है. बैलेंस शीट में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया है तो हमको वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ द क्रेडिट साइड, इज़ द प्लस, ये मैंने बताया फाइनल क्रेडिट साइड होता है. अगर प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा. और अगर लॉस होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ही है लेकिन लॉस होगा तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में. अब ये किसको मिलेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. पहली बात क्या होता है, in balance sheet there can be some reserves, profit and loss account balance, right, contingency reserve, then there can be रिज़र्व, जनरल रिज़र्व, रिज़र्व फंड, ऐसे नाम के जो भी चीज़ें हैं ये क्या होते हैं, जो पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्होंने पिछले साल, मतलब जो इतने साल से काम कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख देते हैं साइड में, राइट. ताकि कभी आगे जाके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी साल लॉस हुआ दे कैन यूज़ दिस रिज़र्व फॉर दैट, राइट. सो दिस इज़ नथिंग बट देयर मनी. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने जो बचाया है ये वो पैसा है, राइट. तो ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. अगर एसेट में लिखा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, और अगर लाइबिलिटी में लिखा होगा तो प्रॉफिट होगा. ये बहुत डीप में मैं आपको जब प्रॉब्लम करेंगे तब बताऊंगी. बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो अगर प्रॉफिट है तो वो किधर आएगा, पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अगर वो लॉस होगा तो इधर आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ पार्टनर को मिल रही है, जो क्रेडिट साइड है इसका, ये प्लस है. तो जो भी चीज़ उसको मिल रहा है, अगर प्रॉफिट है तो उसको मिल रहा है. किसको मिलेगा ये, ओनली दीज टू, एग्जिस्टिंग पार्टनर. अगर बैलेंस शीट में एडमिशन के प्रॉब्लम में कोई भी रिज़र्व वगैरह दिया होता है, अगर वो प्रॉफिट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. और अगर लॉस होगा तो भी सिर्फ इन दोनों को ही मिलेगा. किसके लिए, ओल्ड रेशियो में. सेम लॉजिक जो हमने इसमें पढ़ा, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में. क्या पढ़ा हमने उसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा कि ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एडमिशन होने से पहले, पार्टनर आने से पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है पहले का, वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो अगेन सेम वे, बैलेंस शीट में अगर आपके कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, इफ़ प्रॉफिट यू विल राइट इट इन द क्रेडिट साइड, इफ़ लॉस यू विल राइट इट इन द डेबिट साइड.
ओल्ड रेशियो ओनली टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, राइट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे किया था, राइट, ये जो हमने प्रॉफिट निकाला था और लॉस निकाला था, हमने क्या लिखा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जैसे हम करते थे फाइनल अकाउंट्स में, राइट। अगर प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। सो बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर लॉस है तो किसको मिलेगा, वो मैंने पहले ही बताया आपको उस अकाउंट में, ये दोनों को। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, राइट। So these are some of the important things which you should know about partners capital account, right? तो कैश जो लेके आएगा नया, गुडविल जो लेके आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई एक्यूमी, दिस इज आई हैव रिटन प्रॉफिट, ये जनरल रिजर्व भी हो सकता है, रिजर्व फंड भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, बैलेंस शीट में दिया होगा, ये बोलेंगे नहीं प्रॉब्लम में, दे विल नॉट टॉक अबाउट दिस। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू गो थ्रू दी बैलेंस शीट, आपको खुद पता लगाना है क्या कुछ, ठीक है, बांट दो। लॉस है तो इधर लिख दो, प्रॉफिट है तो इधर लिख दो। किसको दोगे, सिर्फ पुराने पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, राइट। सेम वे जो पहले का अकाउंट हमने बनाया वहाँ से एक होगा। अब इसके बाद इसको हम बैलेंस करते हैं, फिर यहाँ पे सपोज बैलेंस आता है, वो कहाँ आता है, फिर हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल में। तो ABC, अब तीनों के कैपिटल ज्वाइन करके हम लिख देंगे यहाँ पे। बैलेंस शीट, दिस इज बैलेंस शीट, this will be the liability, it is not an account, it's a statement, right? So liabilities, assets, amount rupees, now यहाँ पे सब assets आ जाएंगे, that is fixed assets, current assets, right? और जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में किया था, जैसे कि सपोज ले लेते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग, इसके ऊपर अगर हमने कुछ किया है, वहाँ जो इफ़ेक्ट दिया उसका सेकंड इफ़ेक्ट, अगर डेप्रीसिएशन है, एप्रीसिएशन है तो ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन है तो लेस करेंगे, ठीक है। वो सब एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल एसेट्स, राइट, फिक्स्ड प्लस करंट एसेट्स। यहाँ पे कैपिटल आएगा, यहाँ पे लाइबिलिटीज़, जैसे हमने वहाँ पे क्रेडिटर्स लेस किया है या रिटर्न ऑफ किया है, राइट, माइनस रिटर्न ऑफ, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी लाइबिलिटीज़ दी हुई है वो उसमें जो अगर एडजस्टमेंट है तो ये करना है, एडजस्टमेंट नहीं है तो जैसे है वैसे ही उसका अमाउंट वापस लिख देना है। सो दिस इज़ अबाउट बैलेंस शीट। नाउ दिस कैश अकाउंट, अब इसमें जो भी है, सपोज़ ये 50,000 आया, कैश किसी और को दिया नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा, 2,50,000, 2 लाख प्लस 50, 2,50,000। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जब हम प्रॉब्लम करेंगे ये आपको समझाने के लिए कि हम क्यों बनाते हैं ये अकाउंट। तो कैश अकाउंट का जो भी बैलेंस है, ये एसेट है, मैं यहाँ लिखूँगी, राइट। सेम वे गुडविल, अब ये मैंने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे, गुडविल के मैंने कहा आपको देयर आर 4 केस और गुडविल, मतलब गुडविल 4 तरीके से बिजनेस में आ सकता है। सो दिस 4 केसेस वी विल लर्न प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम। सो देयर कैन बी सम बैलेंस, देयर कैन नॉट बी, हो सकता है गुडविल और अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं हो, बंद हो जाए तो कुछ नहीं आएगा। अगर गुडविल में कुछ बैलेंस आएगा तो वो एसेट है, तो उसका बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल प्रिपेयर दी अकाउंट्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा हम कितने अकाउंट बनाएंगे, 3 अकाउंट आर मेन, विच आर दोज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, which are those profit and loss adjustment account, or we also call it as revaluation account, partners capital account, balance sheet of the firm. Cash and goodwill will be a working note, right? They can also ask you for the journal entry, but for journal entry also, अगर जर्नल एंट्री पूछा तो जर्नल बनाओगे, पर उसके हाथ में आपको ये ज़रूर वो बोलें या नहीं बोलें, आपको ये वाला अकाउंट, क्यों ये वाला अकाउंट, ताकि जो प्रॉफिट और लॉस है इसकी भी जर्नल एंट्री आएगी तो पार्टनर्स कैपिटल की भी, बट मैं बता रही हूँ आपको ये अकाउंट तो बनाना ही बनाना है आपको, राइट। जर्नल एंट्री वी विल डू सम अदर डे, राइट। सो फॉर टुडे आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रिपेयर दीज लेजर अकाउंट्स। ये नॉमिनल अकाउंट है, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है मैंने आपको बता दिया, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कैश एंड गुडविल, जो भी नया पार्टनर लेके आए वर्क ऑन करके जो भी बैलेंस है उसका वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में. ओके, now at 4 o'clock we will meet at Google Meet for question answers and doubt session. Okay, thank you.